Hello everyone, welcome in this session of Business Studies class. In this session, we are going to discuss first chapter of Unit 8, that is Small Business and Introduction. In previous session, we have already discussed the concept of small business and role of small business in rural India. Now, we are going to discuss the special assistance provided to industries established in rural, backward and hilly areas. In India, there are various institutions which provide financial and technical assistance to small-scale industries. They are National Bank for Agriculture and Rural Development, Small Industries Development Bank of India, National Small Industries Corporation, District Industries Centers, commercial banks, land development banks, primary agricultural cooperative societies and regional rural banks. First one is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD was set up in 1982 to promote integrated rural development. Apart from agriculture, it supports small industries, cottage industries and rural artisans using credit and non-credit approach. It offers counseling and consultancy services and organizes training and development programs for rural entrepreneurs. Its chief functions are as follows: provide finance to small industries, cottage and village industries and artisans. To extend the refinancing facility to the commercial and cooperative banks on agricultural loans. Refinancing facility means कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, और उन बैंक्स को लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उन बैंक्स को फाइनेंस की शॉर्टेज है अगर, तो उन्हें कौन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज NABARD. To provide finance for encouraging the export of specific commodities. कुछ commodities ऐसी हैं जो हमारी कंट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही हैं, और उन गुड्स की एक्सपोर्ट के लिए उन्हें मार्केट अवेलेबल कराना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, वो सारा काम कौन कर रहा है, NABARD कर रहा है. ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. स्मॉल स्केल कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज को टाइम टू टाइम काउंसलिंग देना, मोटिवेशन देना, उनको कंसल्ट करना कि किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स. जो गांवों के अंदर छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल स्केल के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना न्यू टेक्नोलॉजी की, कि वो मशीन्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करनी है किस तरह से कर सकते हैं, सारी उनकी डेवलपमेंट की प्लानिंग करना भी किसके अंडर आ रहा है, NABARD के अंडर आ रहा है. Come to the second one, that is Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, very important. It is an apex bank set up to meet the credit requirements of small scale sector. It was established in 1990 and its headquarters located at Lucknow. SIDBI provide financial assistance to small scale sector in the following way. First one is refinancing term loans. Second one is discounting and rediscounting bill of exchange. Third one is providing help in modernization of industries. Fourth one is providing of factoring and leasing services. What is factoring? यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है कि फैक्टोरिंग फैसिलिटी क्या होती है. फैक्टोरिंग फैसिलिटी ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं जब अपनी गुड्स को मार्केट में सेल करती हैं, तो कई बार स्मॉल स्केल विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को अपनी गुड्स को क्रेडिट बेस के ऊपर सेल करना पड़ता है, और जो उनके बायर्स होते हैं वो उन्हें टाइम पीरियड कंप्लीट होने पर अगर मनी दे देते हैं तो वेल एंड गुड है. अगर वो मनी नहीं दे रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, डेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं. अब वो डेटर्स जो उन्हें मनी नहीं दे रहे हैं, यानी कि बैड डेट्स हो चुके हैं, उन्हें वो किसे दे रहे हैं, फैक्टोरिंग एजेंसी को दे रहे हैं. फैक्टोरिंग एजेंसी का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, SIDBI. SIDBI रियल में क्या करता है कि ऐसे डेटर्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज से
ले लेता है जो उनके बैड डेट्स हो चुके हैं, जो उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सिडबी अपने लेवल के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन डेटर्स से कैश जो है वो कलेक्ट करता है और किसे हैंड ओवर करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, जिनके वो डेटर्स थे, जो उन्होंने बैड डेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखे थे कि हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। तो फैक्टोरिंग एजेंसी का रियल में टास्क यही होता है कि वो डेटर्स से कैश को कलेक्ट करता है। और यहाँ पर फैक्टोरिंग एजेंसी का रोल कौन प्ले करता है, सिडबी जो है वो इसका रोल प्ले करता है। एंड प्रोवाइडिंग लीजिंग सर्विसेज, लीज का मतलब होता है रेंट पर लेना, कि अगर किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई मशीनरी चाहिए, कोई और फैसिलिटी चाहिए, रेंट पे चाहिए, तो वो उन्हें लीज पर प्रोवाइड करवाता है। एक्चुअली लीज और रेंट में जो है वो कुछ डिफरेंस होता है। जब हम किसी फिक्स्ड एसेट को लीज पर लेते हैं तो उसमें एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए हमने वो एसेट उनकी हायर कर ली होती है, और उस एसेट में जितनी भी मतलब हमें पेमेंट्स करनी है, जैसे हम रेंट की पेमेंट करते हैं, सेम उसी तरह से होता है। वो एक ही बार में हो जाता है कि 5 ईयर के लीज पर ली गई है, 3 इयर्स के लीज पर ली गई है, तो इतना हमें उसके लिए जो है अमाउंट पे करना है। कलेक्टिवली हम अमाउंट पे कर देते हैं। तो सिडबी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फैक्टोरिंग की और लीजिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाता है। डेवलपिंग द मार्केट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है कि जहां पर वो अपनी गुड्स जो उन्होंने प्रोड्यूस की हैं वो उसे सेल कर सके। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करने का रोल जो है वो कौन प्ले कर रहा है, सिडबी उनके लिए मार्केट का प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है। Come to the third one, that is National Small Industries Corporation, NSIC. It was set up in 1955 to promote small business units in the country. It helps small business in the following ways. First one is supply indigenous and imported machinery on easy hire purchase system. हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग है इंस्टॉलमेंट्स पर। अगर कोई मशीनरी स्मॉल बिजनेस परचेज करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो एनएसआईसी उनकी हेल्प करता है कि आप कलेक्टिव मनी अगर आपके पास नहीं है तो आप मत पे कीजिए, आप इंस्टॉलमेंट्स में इस मशीनरी को परचेज कर लीजिए। फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवा देता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इट डिस्ट्रीब्यूट्स इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई इंडिजीनियस लेवल पर यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर या फिर फॉरेन कंट्री से कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उसे अवेलेबल कराने में एनएसआईसी जो है उनकी हेल्प करता है। एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। कोई पुरानी मशीनरी के प्लेस पर अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनएसआईसी कर रहा है। सपोर्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स। एनएसआईसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है वो रहा है कि उसने टेक्नोलॉजी के ऊपर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया है कि क्या नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है जिसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज करके अपने आप को अपग्रेड कर सकती हैं। तो उसने इसके लिए वेरियस टेक्नोलॉजी पार्क्स भी जो हैं वो एस्टेब्लिश किए हैं, ट्रांसफर सेंटर्स भी बनाए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए हैं, जहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ओनर्स को जो है न्यू टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है ट्रेनिंग भी दी जाती है। Come to the next, that is DIC. It was established in 1978 to coordinate various needs of small entrepreneurs. It acts as the chief coordinator in respect of various government departments and other government agencies. Registration of small industries is done at the DIC. They provide all services, support to small entrepreneurs under a single roof. Very, very important point. Every district has one DIC to deal with all requirements small entrepreneurs. The important functions performed by DIC are to support small enterprises at district level. देखो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, और ये सबसे जो है नियरेस्ट सेंटर है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्टली छोटे सिटीज में या फिर विलेज के अंदर, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम कर रही हैं। तो इनका उनके साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ये एक ऐसी सेंटर है जहां पर सिंगल रूफ के अंडर बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं स्मॉल कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड की जा रही हैं। टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट टू सेट अप स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये पॉइंट, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की हैं, उन स्कीम्स को विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऑनर्स को बताना, उन्हें उनकी नॉलेज देने का काम कौन कर रहा है, डीआईसी ही कर रहा है। प्रिपरेशन ऑफ फेजिबिलिटी रिपोर्ट्स ऑन ईच इंडस्ट्री, हर टाइप की इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, क्या आउटपुट आ रही है, उसकी गुड्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, मतलब क्या स्ट्रक्चर है उस इंडस्ट्री का, पूरी की पूरी रिपोर्ट रेडी करने की ड्यूटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स किसे देती हैं, डीआईसी को ही देती हैं। अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर आर्टिशियंस एंड एंटरप्रेन्योर्स एटसेट्रा, these are the basic functions performed by the DIC. Now come to the commercial banks and land development banks. Commercial banks, the government had ordered the commercial banks to advance loans to industries in these areas on priority basis. गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कमर्शियल बैंक्स को कि स्मॉल स्केल बिजनेस को मोर प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जितना भी उन्हें लोन चाहिए, जितना भी उन्हें फाइनेंस चाहिए, आपको देना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। दीज बैंक्स गिव लॉन्ग टर्म लोन्स for some special purpose on the security of immovable property. For example, to pay back the old loan, to purchase agricultural implements for improving land, etc. Now come to the next, that is primary agricultural cooperative credit societies and regional rural banks. First one is primary agricultural cooperative credit societies. People join these societies willingly on the basis of equality with the purpose of advancing their economic interest. जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम विलिंगली मेंबर जो हैं वो बनते थे, हम यूनिट 2 में ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट रीड कर चुके हैं, उसी तरह से जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वहाँ पर भी आप अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो ये क्रेडिट सोसाइटीज आपकी हेल्प करें, ठीक है, मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनसे लोन लेने के लिए आप अपनी विलिंगनेस से जो है उसके मेंबर बन सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सोसाइटीज इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन टू देयर मेंबर्स, और इन सोसाइटीज की हेल्प कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। Regional rural banks, the major function of these banks is to provide financial and other kinds of helps to the farmers, laborers, artisans and small entrepreneurs. Development in agriculture, trade, industry and other production activities has been made possible with the help of these banks. ये ऐसे बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर की, ट्रेड की, इंडस्ट्रीज की और जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज स्मॉल स्केल पर हो रही हैं, यानी कि स्मॉल बिजनेस में, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज में हो रही हैं, उन सब की हेल्प करने की जो ड्यूटी है वो किसकी है, रीजनल रूरल बैंक्स की है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसे, फार्मर्स को, लेबरर्स को, आर्टिशियंस को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। Thanks for watching this video and have a nice day.